Hello students, welcome to online study English medium, subject English, grammar, standard 8, chapter 9, parts of speech, conversion. So dear students, you know very well that in the formation of sentence it's very required parts of speech. Parts of speech means what? First of all, you will have to understand the title first of all. Parts of speech, it means noun, verb, adverb, adjective, pronoun, conjunctions, prepositions. These all are your parts of speech. It means if you want to create any one sentence, you must have to get the help of these among all these things. It means verb, adverb, adjective, such kinds of pronoun, preposition, such kinds of parts you will have to use in the sentence. So parts of speech, it means nothing. If you want to create formation of sentence, you can use some noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction. So these all are parts of speech. Without all these things, it's not possible to create the formation of sentence. Now let's go ahead with some exercise about the parts of speech. It's a conversion. So there are 8 parts of speech in English, dear students. First one noun, second one verb, third one adverb, then conjunction, pronoun, adjective, preposition and interjection. So dear students, what is the noun? Noun, it means name of person, place, things or object. Verb, it means action word. For example, jumping, crying, reading, writing, listening, such kinds of verb. It means that is your action word. Adverb means what? That you already understand in your ago session. Adverb, it means a word which is adding something in verb. That is your adverb. For example, he ride bicycle quickly. He ride bicycle fastly. So राइडिंग कर रहा है बाइसिकल को, बट कैसे राइड कर रहा है? फास्टली. सो फास्टली वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है. सो वर्ब पे जो इफेक्ट करता है दैट इज एडवर्ब. Now conjunctions. Conjunctions is generally using for conjunct two sentence or two words. For example, and, but, because, so that, like such kinds of words are your conjunctions. Then pronoun. So a word which is using instead of noun, that is your pronoun. For example, रमेश भाई है उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं. शीतल है उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. सो ये जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, वट एवर आर देयर, दैट इज ऑल आर योर प्रोनाउन. नाउ एडजेक्टिव, अ वर्ड विच इज इफेक्ट or adding something in noun, that is your adjective. For example, peacock. बट कैसा है peacock? Beautiful peacock. Small girl. गर्ल है पर कैसी गर्ल है? Small girl. bushy tree. ट्री है बट कैसा है? bushy है. So these all word, beautiful, small, bushy, these all are your adjective. Now preposition. So preposition, which one? For example, beside, under, still, until. So to, for, from. So ये सारे के सारे क्या है? preposition है. Now interjection. I think this is the new word for you. So interjection means generally you are using in your regular language also, but we are not aware about that is known as interjection. It means we don't have enough information that words are known as interjection. For example, you are using a word for surprising. Wow,
hooray, oh, alas. So such kinds of word you are using in your sentence, that is your interjection. It means interjections are using to express our feelings. So you get the little bit information about these 8 parts of speech. Now let's go ahead. These parts of speech have different uses in the formation of sentences, but it is important to know that these parts of speech can be changed from one form to another, and accordingly the sentence also changes. In short, dear students, पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस है सेंटेंस के अंदर. हर एक सेंटेंस है वो सिमिलर फॉर्मेशन का नहीं होता है. किसी में एडवर्ब का यूज होता है, किसी में एडजेक्टिव का होता है, किसी में प्रोनाउन कंजक्शन का होता है, किसी में इंटरजेक्शंस यूज करते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के. और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इस्तेमाल है वो चेंज होता है सेंटेंस में, उसके मुताबिक सेंटेंस भी चेंज होता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई हेट लायर्स वेरी मच. मुझे झूठे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है. मैं झूठे लोगों को बहुत नफरत करता हूँ. सो यहाँ पे हेट वर्ड है वो कैसे एज अ वर्ब यूज हुआ है. आई हेट लायर्स. मुझे कैसे लोग पसंद नहीं है, झूठे लोग. सो आई हैव अ लॉट ऑफ हैट्रेड फॉर लायर्स. मुझे क्या है, लायर्स लोगों से बहुत नफरत है. मुझे बहुत ज्यादा नफरत है झूठे लोगों से. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का इस्तेमाल चेंज होने पे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में भी चेंज आता है. Next one. In the above sentence, the meaning of both sentences is the same, but in the first sentence, the word hate is a verb. I already told you, dear students, कि first one sentence है उसमें hate है वो as a verb use हुआ है, while in the second sentence it has been changed into its noun form hatred. While second sentence में hatred for liars जैसा है, यानी कि झूठे लोगों से नफरत है. तो फर्स्ट सेंटेंस में हेट वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है और सेकंड वन में एज अ नाउन. नाउ लेट्स गो अहेड विथ द एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच. डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट्स मीन्स वन वर्ड दिया है नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में और एडवर्ब फॉर्म में. ये जो ब्लैक वाले हैं वो सब ऑलरेडी टेबल में दिए हुए हैं और रेस्ट ऑफ सब रेड कलर से है वो सब उसके आंसर्स हैं. तो लुक इट हियर. इसके लिए वोकेब होना यानी कि स्पेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. लुक एट द फर्स्ट वन. यहाँ पे वर्ब फॉर्म में फंक्शन दिया है कि फंक्शन वर्ड है उसका नाउन फॉर्म क्या होता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है और उसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, वो हमें स्पेलिंग लर्न करने से पता चलता है. सो फंक्शन का वर्ब फॉर्म है उसका नाउन फॉर्म फंक्शन, एडजेक्टिव फॉर्म फंक्शनल, एंड एडवर्ब फॉर्म फंक्शनली. ये जो एडवर्ब फॉर्म है ना वो बहुत ब्यूटीफुली मजा आता है इसको सीखने में, बिकॉज मोस्टली उसके फॉर्मेशन में ज्यादातर एल वाई से ही बनता है. लुक एट हियर इन होल रो. सेकंड वन एडमिरेशन. सो एडमायरेशन का क्या बनता है, एडमायर, एडमायरेबल, एडमायरेबली. नाउ थर्ड वन मास्टर. एडजेक्टिव फॉर्म दिया है उसका मास्टरी, मास्टर एंड मास्टरफुली. देन फोर्थ नेक्स्ट वन चैलेंज. उसका क्या बनता है, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. चैलेंज, चैलेंजिंग, चैलेंजिंगली. नाउन फॉर्म डिफरेंस. उसका क्या बनेगा, डिफर, डिफरेंट, डिफरेंटली. ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली. डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंट एंड डिस्टेंटली. मूवमेंट, मूव, मूवेबल, मूविंगली. स्ट्रोक, स्ट्राइक, स्ट्राइकर, स्ट्राइकिंगली. डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई, डाइवर्स एंड डाइवर्सली. So dear students, it depend on you. If you have enough knowledge about spelling, it means vocab,
knowledge, then you can very easily get the answer for this table. Permission, permit, permissive, permissibly. Expanse, expand, expensive, expensively. Travel, travel, traveling, traveling. Pass, pass, passing, passingly. Tyranny, tyrannize, tyrannical, tyrannically. So dear students, here your one word, it means if your noun form, verb form, adjective form and adverb form, it means if there is a one word, there are 4 types of form will be possible. So let's go ahead with these next exercise. B number, replace the underlined words with their noun form. वर्ड को रिप्लेस करना है, अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है. अंडरलाइन वर्ड आपको जो दिया है उसका कौन सा फॉर्म बनाना है, नाउन फॉर्म बनाना है. सो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, चीटिंग, तो उसका चीटिंग वर्ड है वो यहाँ पे एज अ वर्ब दिया है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसका नाउन बनाना है. यू हैव बीन चीटिंग मी सिंस आई मेट यू द फर्स्ट टाइम. मैं तुझे फर्स्ट टाइम मिला था तब से तूने मेरे साथ चीटिंग किया है. सो चीटिंग का क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा. नाउन फॉर्म क्या बनेगा उसका, चीट. योर बिहेवियर हैज बीन फिल्ड विथ चीट. तुम्हारा बिहेवियर पूरा किससे भरा हुआ है, चीट से भरा हुआ है. सिंस आई मेट यू द फर्स्ट टाइम, ये तुझे फर्स्ट टाइम मिला तब से तेरा बिहेवियर कैसा है, चीटिंग वाला है, चीट वाला है. वी आर नॉट अलाउड टू एडमिट एनी मोर चिल्ड्रन. यहाँ पे हम लोग और ज्यादा बच्चों को एडमिट करने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं. सो अलाउड यहाँ पे एज अ वर्ब फॉर्म दिया है, उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, अलाउंस. वी आर नॉट गिवन अलाउंस टू एडमिट एनी मोर स्टूडेंट्स, या तो चिल्ड्रन. हम लोग और ज्यादा बच्चों को यहाँ पे एडमिट करने के लिए अलाउड नहीं कर रहे, यानी कि परमिशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे. सो we are not given allowance to admit any more children or students. Here you will have to write children as per your question. Third number, what therapy is best to stop snoring? Snoring it means खराटे लेना. खराटे को स्टॉप करने के लिए बेस्ट थेरापी कौन सी है, सो स्नोरिंग का क्या होगा, स्नोर्स. व्हाट थेरापी इज बेस्ट टू स्टॉप स्नोर्स. नेक्स्ट वन, द रेड्स आर फाइटिंग ओवर अ पीस ऑफ चीज. रेड्स है वो किसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं, चीज के बाइट के लिए, चीज के टुकड़े के लिए. सो फाइटिंग का नाउन फॉर्म क्या बनेगा, फाइट. द रेड्स आर हैविंग अ फाइट ओवर अ पीस ऑफ चीज. पीस ऑफ चीज के लिए रेड्स है उनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई. नेक्स्ट वन, the international media is full of the news that US is now going to attack Iran. इंटरनेशनल मीडिया है उसमें हर जगह पे एक ही न्यूज है कि यूएस है वो ईरान पे अटैक करने जा रहा है. सो अटैक है उसका हमें नाउन फॉर्म करना है. द इंटरनेशनल मीडिया इज फुल ऑफ द न्यूज दैट यूएस इज नाउ गोइंग टू attacked Iran. Next one, pick out the adjective from the following sentences and rewrite the sentences using their noun form. C number exercise, what you will have to do, जो sentences दिए हैं उसमें से adjective को बाहर निकालना है and रीराइट द सेंटेंस यूजिंग देयर नाउन फॉर्म. उसका हमें नाउन फॉर्म बना के, एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म बना के सेंटेंस को रीराइट करना है. सो लुक एट द फर्स्ट वन, नो वन कैन डेनी दैट इट वाज द मोस्ट ट्रेजिक एक्सीडेंट टू हैव टेकन प्लेस इन द स्कूल. ये बात के लिए कोई मना नहीं कर सकता है कि स्कूल में ये सबसे बड़ा मोस्ट ट्रेजिक एक्सीडेंट टू हैव टेकन प्लेस इन द स्कूल, की सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो स्कूल में हुआ है. सो ये जो ट्रेजिक वर्ड है, एक्सीडेंट है पर कैसा है, ट्रेजिक.
तो वो जो एडजेक्टिव है उसको हमें नाउन में कन्वर्ट करना है। No one can deny that it was an accident filled with utmost tragedy that took place in the school. ये बात कोई मना नहीं कर सकता है कि ये जो एक्सीडेंट है वो पूरा किससे भरा हुआ है, ट्रेजेडी यानी कि दुख से भरा हुआ है जो स्कूल में हुआ है। सो ट्रेजिक का क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेजेडी। यहाँ पे ट्रेजिक यानी कि बहुत ही शॉकमय, बहुत ही दुखी, और यहाँ पे ट्रेजेडी यानी कि जो हादसा होता है वो कैसा था, दुखमय था। सेकंड वन, द क्वेक कन्विंस्ड द गुलिबल हाउसवाइफ अबाउट हिज मेडिसिन्स। क्वेक ने अपनी गुलिबल हाउसवाइफ को मेडिसिन के लिए कन्विंस किया। सो गुलिबल वर्ड है उसका क्या हो जाएगा, द क्वेक कन्विंस द हाउसवाइफ हु वाज फुल ऑफ गुलिबिलिटी अबाउट हिज मेडिसिन्स। अपने मेडिसिन के लिए उसको क्या थी, गुलिबिलिटी थी। सो गुलिबल का क्या कर दिया हमने, हाउसवाइफ है पर कैसी है, गुलिबल है। सो गुलिबल वर्ड है वो हाउसवाइफ में यानी कि नाउन में कुछ ऐड कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, उसको हमें क्या बनाना है, नाउन फॉर्म बनाना है उसका, एडजेक्टिव में से नाउन करना है। सो नाउन क्या हो जाएगा, गुलिबिलिटी। इट वॉज एज दो आई वॉज वियरिंग अ चार्म्ड एम्यूलेट। इट वॉज एज दो I was wearing a charmed amulet. मैंने क्या पहना है, बहुत ही charmed amulet पहना हुआ है। It was as though I was wearing an amulet full of charm. वो क्या है कि मैंने जो amulet पहना हुआ है वो किससे भरा हुआ है, full of charm से भरा हुआ है। So charmed का क्या हो गया, charm। Next one, being lucky won't help you as long as you are supposing. नसीबदार बनने के लिए मैं तुम्हें वॉन्ट हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू आर सपोजिंग, जितना आप सोच रहे हो उतने लंबे समय तक आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। हैविंग लक वॉन्ट हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू आर सपोजिंग। सो बिंग का क्या हो गया यहाँ पे, हैविंग। Now D number exercise, pick out the adverb from the following sentences and rewrite the sentence using their noun form. यहाँ पे अभी फर्स्ट वन में हमने क्या किया, वर्ब में से नाउन फॉर्म बनाया। देन सेकंड वन में हमने क्या किया, एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म बनाया। अभी क्या करना है, एडवर्ब का नाउन फॉर्म बनाना है। फुल सेंटेंस को रिराइट करना है एडवर्ब में से नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करके। He quickly jumped out of the window. उसने जंपिंग किया, कैसा जंपिंग किया, क्विकली। सो वर्ब में ऐड कर रहा है, मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। तो क्विकली का क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म, क्विकनेस। He jumped out of the window with quickness. उसने विंडो में से जंपिंग किया, किसके साथ, बहुत ही स्पीड के साथ, क्विकनेस के साथ। सेकंड वन, the soldiers were injured terribly in the missile attack. सोल्जर्स है वो बहुत ही भयानक तरह से मिसाइल अटैक में इंजर्ड हुए हैं। सो इंजर्ड हुए हैं, बट कैसे इंजर्ड हुए, टेरिबली यानी कि बहुत ही भयानक तरह से। सो दिस इज योर एडवर्ब बिकॉज ये वर्ब पे इफेक्ट कर रहा है। सो टेरिबली का क्या हो जाएगा, टेरिबल, नाउन फॉर्म। द सोल्जर्स वर इंजर्ड इन अ टेरिबल मैनर इन द मिसाइल अटैक। मिसाइल अटैक में सोल्जर है वो टेरिबल मैनर से घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। थर्ड वन, आंसर दिस ट्रूथफुली एंड यू विल बी अलाउड टू लीव। सच्चाई से आंसर देना और आपको जाने के लिए हम परमिशन दे देंगे। आंसर दिस विथ ट्रूथफुलनेस एंड यू विल बी अलाउड टू लीव। ट्रूथफुली का क्या हो गया, ट्रूथफुलनेस। आप बहुत सच्चाई से आंसर देना एंड आपको जाने के लिए मंजूरी दी जाएगी। 4 नंबर, what you are saying might be true theoretically not practically. आप जो भी बोल रहे हो वो शायद theoretically ट्रू है, practically ट्रू नहीं है। सो ट्रू है पर किसमें, theoretically and practically. So what are you saying might be true in theory not in practice. जो आप जो भी बोल रहे हो वो मे बी थियोरी में ट्रू है बट प्रैक्टिस में नहीं। सो थियोरेटिकली का क्या हो गया, थियोरी,
एंड प्रैक्टिकली का क्या हो गया, नाउन फॉर्म प्रैक्टिस. So dear students, here your exercise is over. Thank you.